بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ای او پی آئی کے متعلق ہی ہے اور ای او پی آئی کی پینشن سے متعلق ہے، اور آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کو پینشن مل رہی ہے یا جو پینشن لیتے چلے آ رہے ہیں یا جن کو پینشن ملنے والی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو ای او پی آئی نے بڑے عرصے سے رولا ہوا تھا اور لٹکا کے رکھا ہوا تھا کہ جناب آپ کی پینشن نہیں بنتی ہے، آپ کو جناب گرانٹ ملے گی، لم سم ملے گا، فلاں اور یہ اور وہ، اور ای او پی آئی کے دفاتر نے جو ہے وہ لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج اس حوالے سے بہت ہی اہم انفارمیشن میں آپ کے ساتھ دینے والا ہوں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر اس کے بعد جو ای او بی آئی نے اپیل دائر کی، اس اپیل کا کیا ہوا، کن ججز نے فیصلہ دیا، انہوں نے کیا کہا، اور آنریبل ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا، پھر ہائی کورٹ کے خلاف یہ گئے انٹرا کورٹ اپیل میں، وہاں کیا ہوا، کون کون سے ججز تھے، انہوں نے کیا قرار دیا، ای او بی آئی کے جو حکام تھے ان کو کس قدر جھٹکے لگے وہاں پر، تو اب ہوگا کیا۔ بہت ہی اہم ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے تو معذرت اس بات کی کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کچھ دیر بعد ویڈیو آنے والی ہے، اس کے بعد مجھے شدید بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، گلا خراب ہو گیا، سڈن ہوا یہ سارا۔ تو اس کے بعد پھر آج سارا دن جو ہے وہ یہی طبیعت کی خرابی چلتی رہی۔ خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میڈیسن لینے کے بعد کچھ بہتری آ گئی ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں آج کے موضوع کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کے حوالے سے پہلے زمانے میں 3 کیٹیگریز ہوتی تھی جن کو پینشن ملتی تھی، اور 3 کیٹیگریز میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 15 سال کی شرط ہوگی، پھر ایج گروپ ہوگا، پھر دوسرا ایج گروپ ہوگا جس کے اندر 7 سال تک آپ کو جو ہے کنٹریبیوشن دینی ہوگی، پھر تیسرا ایج گروپ ہوگا جس کو 5 سال تک کنٹریبیوشن دینا ہوگا، اس کے بعد ان کو پینشن مل جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سرکولر جاری کیا، سرکولر نمبر تھا 3/1718۔ یہ سرکولر تھا جس میں انہوں نے قرار دیا کہ 15 سال جس کی کنٹریبیوشن ہوگی اسی کو اب پینشن ملے گی، کم والوں کو جو ہے وہ لم سم دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا۔ اب کچھ پینشنرز نے اپیل دائر کی بورڈ آف ٹرسٹیز میں، اپیل فار ایوارڈ آف پینشنری بینیفٹس، انہوں نے بورڈ آف ٹرسٹیز میں اپیل دائر کر دی۔ بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس سرکولر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قرار دیا کہ جناب آپ گھر جائیں، آپ کو لم سم ملے گی، آپ کو جو ہے مکمل پینشن نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، وہی پینشنر جو تھے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو ہے ایک ججمنٹ دے دی۔ میں پہلے اس کا کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم جو ہے انٹر کورٹ اپیل پر بات کرتے ہیں۔ آئینی درخواست انہوں نے دائر کی۔ آئینی درخواست تھی ماہانہ پینشن کی بنیاد پہ، گریجویٹی کی بنیاد پہ، دیگر مفادات کی بنیاد پہ، اور لینتھ آف سروس کو بھی اس میں زیر بحث لایا گیا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز نے چونکہ ان کی اپیل خارج کر دی تھی، اس بنیاد پر کہ وہ پہلے نقطہ سمجھ لیجئے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے کیوں خارج کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پینشن ہے، کنٹریبیوشن ہے، وہ 14 سال سے کم انشوریبل امپلائمنٹ ہے آپ کی، اس لیے آپ پینشن کے مستحق نہیں ہیں۔ اب جب عدالت نے دیکھا تو عدالت نے اس پورے معاملے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کا کرکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا جو ایکٹ ہے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینیفیشل لیجسلیشن پر مبنی ہے۔ بینیفیشل لیجسلیشن جو ہے
बेनिफिशियल लेजिस्लेशन जो है ये इसकी अपनी स्कीम है, और इसमें ना तो कोई शक है ना इसके अंदर कोई वेगनेस है। ये डाउट और वेगनेस से बालातर है। उन्होंने कहा है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन जो है इसकी ताबीर व तशरीह भी इस असूल पे होगी कि वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के असूल से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। अब डिपार्टमेंट ने जो तशरीह की वो ऐसी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के असूल की जो ताबीर व तशरीह की थी वो बियॉन्ड द लेजिस्लेशन थी, बियॉन्ड द बेनिफिशियल लेजिस्लेशन थी। अब वसी तनाजुर में पेंशनर्स के हक में जो ताबीर व तशरीह हो सकती है तो उसको फॉलो करना चाहिए, अदालत ने करार दिया है। ये नहीं है कि आपकी मर्जी है आप उसकी ताबीर व तशरीह जैसे करते फिरे, तो ऐसी बात नहीं है। अब इसकी ताबीर व तशरीह इस अंदाज की होनी चाहिए जिससे पेंशनर्स को फायदा हो। अदालत ने जब कानून तशरीह के जरिए नोटिफिकेशन, वो जो मैंने 3/17/18 आपको बताया है सर्कुलर नंबर, तो उन्होंने जब उसका मुताला किया तो उन्होंने कहा इसकी जुबान बड़ी सादा है, अनएम्बिगुअस है, तो ये ईओबीआई का डिपार्टमेंट जो है ये गलत तशरीह कर रहा है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा कि ये पेंशनर्स के हकूक के खिलाफ है, और डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ था कि ये पेंशनर्स और पिटिशनर्स के हकूक के खिलाफ नहीं है। अदालत ने कहा नहीं, आप जाएं इस नोटिफिकेशन को जो है आप देखें, दफ़ा 22(1) जो एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट का सेक्शन 22 है, 22(1) के तहत आप इसको देखें, उसी को आप फॉलो करें। आप अपनी मर्जी जो है की ताबीर व तशरीह नहीं कर सकते। अब जो है क्या किया कि पेंशन जो है पेंशनर्स का हक है, उनको मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि यहां पर आके उन्होंने क्लियर किया कि भाई एम्प्लॉयर के 3 ग्रुप बने हुए हैं सेक्शन 22(1) के तहत। इसके 3 ग्रुप हैं, इसकी अपनी स्कीम है, और इस स्कीम के तहत 3 ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। पहला ग्रुप है जनरल ग्रुप, उसका नाम ही जनरल ग्रुप है। उन्होंने कहा है कि वो मेंबर जो रजिस्टर होगा एज इंश्योरेबल एम्प्लाई ज़ेर दफ़ा 2(1) और कानून एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976, उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल की उम्र में उसको रजिस्टर होना है। अब इस पर लाजिम है कि वो 15 साल तक कंट्रीब्यूशन देगा, ज़ेर दफ़ा 22(1)B के तहत देगा। 22 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन B, उन्होंने कहा है कि वो 15 साल तक कंट्रीब्यूशन देगा, 22(1)B के तहत देगा, और उसके लिए उसकी एज का जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है 18 से 40 साल की उम्र के लिए। अब दूसरा ग्रुप आ गया, अगर एम्प्लॉयज की उम्र 40 से 45 साल तक की हो तो फिर ज़ेर दफ़ा 2(1) ऑफ लॉ ऑफ ओल्ड एज एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्ट 1976, तो फिर वो अगले 7 साल तक कंट्रीब्यूशन देगा। अब इसमें तीसरी कैटेगरी आ गई, अगर एम्प्लॉय की उम्र 45 साल से ऊपर हो, ओवर 45 ईयर हो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन बतौर इंश्योरेबल एम्प्लॉय होगी, तो वो 5 साल तक कंट्रीब्यूशन देगा। अच्छा, ये जनाब उन्होंने जजमेंट दे दी, और ये मैं आपको जजमेंट का हवाला पहले भी एक दफ़ा दे चुका हूँ। ये है 2021 PLC सिविल केसेस 1200, ठीक है जी। अब ये जजमेंट का उन्वान है। अब इन्होंने जब इदारे ने देखा कि जनाब ये तो एम्प्लॉयज़ के हक में बड़ा फैसला आ गया है, उन्होंने जनाब इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। अब इंट्रा कोर्ट अपील जब लगी अदालत में, तो वो जनाब मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये 2 जजेस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच था, इनके पास इनकी इंट्रा कोर्ट अपील लग गई, और अब इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी हो गई। अब जब समाअत हुई तो अदालत ने पूरे केस को स्क्रूटनी किया, देखा, तो उनसे पूछा, हाँ भाई बताओ आप किस लिए आपने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। तो इनके पास क्या आर्गूमेंट्स थे ईओबीआई के डिपार्टमेंट के पास, इन्होंने वही जी सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर में था, सर्कुलर के जरिए था। तो उन्होंने कहा अगर आपका सर्कुलर
कानून से मुतसादिम है तो अदालत ने ठीक करार दिया है, वो कंट्रेरी टू द लॉ है। तो जो चीज़ कंट्रेरी टू द लॉ है वो नहीं चल सकती। तो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा आप अपने आर्गूमेंट्स करें। अब उन्होंने जनाब अपने आर्गूमेंट्स दिए। आर्गूमेंट्स तो उनके पास थे नहीं। अब जनाब उन्होंने, अदालत ने जो करार दिया है ना, जो फैसला कौन पैरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपील उस वक्त हो सकती है जब मोहतरम जज ने कानून की दफात के खिलाफ फैसला किया हो, या वो कंट्रेरी टू द लॉ हो, कानून से तजाद रखता हो, मुतसादिम हो, या वो जजमेंट मिस रीडिंग का नतीजा हो, या वो नॉन रीडिंग का नतीजा हो, उसको गलत पढ़ा गया हो, या उसको पढ़ा ही ना गया हो सिरे से, उसका नतीजा हो। अगर आपकी जजमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर तो आपके अपील सुन लेते हैं। अगर वो कंट्रेरी टू द लॉ भी नहीं है, अगर मिस रीडिंग का नतीजा भी नहीं है, नॉन रीडिंग का नतीजा भी नहीं है, सरमाइसिस कंजक्चर भी उसके अंदर नहीं है, तो फिर भाई आपकी अपील, इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो नहीं बनती। लिहाजा आपकी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज की जाती है। तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने ईओपीआई की इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो खारिज कर दी। अब जनाब वो तमाम पेंशनर्स जो लमसम ले रहे थे, जिनको लमसम मिल रही थी, या वो मोहतरम साहबान जिनको लमसम दे चुके हैं 17-18 के बाद, इस सर्कुलर के बाद, तो बराए करम अब वो दोबारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जाके अपनी एप्लीकेशन मूव करें। पहले रीजन ऑफिस में चले जाएं और रीजन ऑफिस से ये मूव करवा दें अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कि यही वहाँ पर जो इनकी अपील फॉर अवार्ड है ना जी, वो थी अपील अवार्ड फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स, अपील फॉर अवार्ड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, वहाँ पर ये एप्लीकेशन दें और अपील दायर करें और उनको कहें कि जनाब ये आपका सर्कुलर जो है ये ख़त्म हो चुका है, और सर्कुलर आपका जो है 2017-18 वाला, तो उसके बाद 15 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई है, लिहाजा हमारी पेंशन बनती है, हमें पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो अदा किए जाएं। अब ये मुकम्मल तौर पे फैसला जो है पेंशनर्स के हक़ में आ चुका है। ठीक है, जिनको लमसम मिल चुकी है। अच्छा, जिन लोगों को इस जजमेंट की कापी दरकार हो तो वो कापी मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकता हूँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जजमेंट भी आपको भेज सकता हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। तो जिस बुज़ुर्ग ने मुझे ये जजमेंट मुहैया की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे जो है रावलपिंडी से ये जो जजमेंट है वो मुझे भेजी और मैंने उनसे मंगवाई। फिर कल तो मैं इस पर काम नहीं कर सका, आज जो है ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। अब रही बात कि अब पेंशन का असूल कौन सा लागू होगा। पेंशन का 18 से 40 साल 15 साल कंट्रीब्यूशन, और 40 से 45 साल 7 साल कंट्रीब्यूशन। 45 साल से ऊपर का कोई बंदा होगा तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी, उसको कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा, 5 साल का पेंशनरी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ये आपका हक है, ये आपको मिलेगा। कानून ने ये तय कर दिया है, अदालतों ने ये तय कर दिया है। अब ईओपीआई की जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो भी खारिज हो चुकी है। अब ये केस हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और उम्मीद है आज का मौजू आपको यकीनन पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके हकूक़ सलब हो चुके हैं, ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए अपने हकूक़ हासिल